بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ رمضان المبارک میں لاہور سمیت بڑے شہروں میں رات کو کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ 10 رمضان المبارک سے نائٹ سپورٹس ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ، فٹ بال اور ہاکی کے نائٹ مقابلے ہوں گے۔ اس بات کا اعلان نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایک اجلاس میں کیا۔ اجلاس میں سیکٹری سپورٹس، سیکٹری اطلاعات، سیکٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن، سی سی پی او لاہور، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایم اے، ایم ایس سی اور ایم ایڈ پروگرامز بند کر دیے۔ فیصلہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نئی پالیسی کے تحت کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایم اے، ایم ایس سی اور ایم ایڈ پروگرامز بند کر دیے۔ فیصلہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نئی پالیسی کے تحت کیا گیا۔ متعلقہ پروگرامز میں پہلے سے زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایم اے، ایم ایس سی، ایم ایڈ کے زیر تعلیم طلبہ و طالبات 2026 تک پروگرام مکمل کر لیں۔ ایم ایس سی پروگرام، پی جی ڈی، ڈپلومہ ان ایجوکیشن بھی 2023 تک مکمل کیا جائے، جبکہ ایم اے 1.5 سالہ پروگرام بھی رواں سال تک مکمل کیا جائے۔ پروگرام مکمل نہ کرنے کی صورت میں تمام ذمہ داری طلبہ و طالبات پر ہوگی۔ لاہور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری۔ سیف سٹی کے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے آٹزم کا شکار 8 سالہ بچہ ماں سے ملوا دیا۔ سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ لاہور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری۔ سیف سٹی کے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے آٹزم کا شکار 8 سالہ بچہ ماں سے ملوا دیا۔ بچہ گھر سے دکان پر چیز لینے گیا اور گھر کا راستہ بھول گیا۔ ماں نے تلاش کے بعد رات گئے 15 ایمرجنسی نمبر پر گمشدگی کی اطلاع دی۔ بچے کو متعلقہ پولیس اسٹیشن اور ڈولفن ٹیم کے ذریعے رات 2 بجے ماں سے ملوا دیا گیا۔ ایس پی نائٹ پیٹرولنگ سیف سٹی عثمان ٹیپو کا کہنا ہے کہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر اب تک 378 گمشدہ کمسن بچوں کو تصدیق کے بعد والدین سے ملوا چکا ہے۔ گمشدہ بچے کی والدہ اپنے لال کو پا کر بہت خوش دکھائی دی۔ اس موقع پر اس نے پولیس اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ تقریباً رات 2 بجے 15 پہ کال کی ہے تو میں نے اپنے بچے کا نام بتایا ہے۔ پورے 15 منٹ کے بعد مجھے سیف سٹی سے کال آئی ہے کہ آپ کا بچہ ہمیں مل گیا۔ اللہ کی ذات نے، سیف سٹی نے میری بہت مدد کی ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی جہاں انسانوں کو انسانوں سے ملوانے کا ذریعہ ہے، وہیں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے 7 گمشدہ قیمتی جانور بھی مالکان کے حوالے کیے ہیں، جبکہ اب تک 7252 گمشدہ موٹر سائیکلز، 134 گاڑیاں اور 160 رکشے تلاش کر کے مالکان کے سپرد کیے جا چکے ہیں۔ لاہور پولیس میں نائٹ پیٹرولنگ ابھی سیف سٹی کیمراز کی مدد کی جا رہی ہے۔ آج کی نائٹ پیٹرولنگ کے دوران میری سپرویژن تھی اور ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے جس میں ایک بچہ اپنے ماں باپ سے گم جاتا ہے۔ تو وٹ سیف سٹی ڈیڈ گڈ ورک واز کہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ایک اس کو ملنے کی کال بھی بچے کی موصول ہوتی ہے اور اس طرح ایک گمشدگی کی کال بھی ہوتی ہے۔ دونوں کو میچ کیا جاتا ہے، وہ بچہ ٹریس ہوتا ہے اور اس بچے کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، وچ از ون گڈ ورک وچ از ڈن بائی سیف سٹی۔ نہ صرف اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بہت تھینک فل تھے لاہور پولیس کا اور سیف سٹی کا، بلکہ سیف سٹی اسی طرح کیسز کو سالو کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر کے ایک بہت پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ ایس پی نائٹ پیٹرولنگ سیف سٹی عثمان ٹیپو کا کہنا ہے کہ شہری کسی بھی گمشدگی کی اطلاع فوری 15 پر دیں۔ شیخوپورہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں میگا کرپشن کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اسپتال میں تعینات افسران، فارماسسٹ اور پرائیویٹ افراد صحت سہولت کارڈ سے خریدی جانے والی ادویات میں خود بدھ کرتے رہے۔ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ شیخوپورہ کے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر فرجاد بٹ نے صحت سہولت کارڈ میں مبینہ کرپشن کا سکینڈل سامنے آنے پر فوری نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایم ایس نے صحت سہولت کارڈ سے خریدی جانے والی ادویات میں مبینہ کرپشن پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ افسران اور فارماسسٹ مریضوں کے لیے صحت سہولت کارڈ سے خریدی جانے والی ادویات بازار سے مہنگے داموں خریدتے رہے۔ صحت سہولت کارڈ کی ادویات سے بچائے جانے والے پیسوں سے ہسپتال کے لیے فرنیچر اور دیگر
चीजों के बिल बनवाए गए। अफसरान और फार्मासिस्ट डॉक्टर की जानिब से मरीजों के लिए लिखी जाने वाली अद्वियात की तादाद कम और ज्यादा करके माहाना लाखों रुपए की मुबैना करप्शन करते रहे। DHQ अस्पताल में गरीब आवाम के इलाज मुआवजा का वाहिद सहारा सेहत सहूलत कार्ड में मुबैना करप्शन पर आला अफसरान इंक्वायरी करें तो बड़े स्कैंडल में मुलविस अफराद को बेनकाब किया जा सकता है। लाहौर में कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट टीम मेंबर्स को नकद इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स लाहौर में कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन जराइम के इश्तिहारी शूटर्स और डाकू गिरफ्तार करने वाली टीम के एजाज में तकरीब। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, SSP CIA कैप्टन लियाकत अली मलिक ने शिरकत की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट टीम मेंबर्स को नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। नकद इनाम तारीफी असनाद हासिल करने वालों में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम, ASI मोहम्मद यूनुस दीगर एहलकार शामिल हैं। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि CIA लाहौर संगीन जराइम की सरकूबी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। SSP कैप्टन लियाकत अली मलिक की क़यादत में CIA लाहौर की कारकर्दगी बेहतर आई है। CIA अफसरान शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए मजीद मेहनत करे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने वाली पुलिस एहलकार शाबाश के मुस्तहिक हैं। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई जारी रहेगी। सिब्बी पुलिस में तरक्की पाने वाले जवानों के एजाज में रैंक लगाने की तकरीब SSP ऑफिस सिब्बी में मुनक्किद हुई। तकरीब में SSP सिब्बी यूसुफ करीम, DSP हेडक्वार्टर रियाज अहमद, DSP लीगल नेमत खान और ऑफिस सुप्रीडेंट भी मौजूद थे। रमजान उल मुबारक के महीने में सब्जियों, फलों और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। चिन्योट में अशियाए खुर्दोनोश की सूरत हाल के बारे में जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक के आते ही खजूर, सब्जी, दालें, फ्रूट का जो रेट है आम आदमी की सोच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। रमजान से एक दिन कम जिन चीज़ों का रेट और थे, अब रमजान के शुरू होते ही उन चीज़ों का रेट मुसलमानों ने बढ़ा दिया है। खजूरों का रेट जो है वो 200 से 300 जो पहले था, अब उनका रेट 500 से 600 रुपये चल रहा है। दालों की बात की जाए, उनका रेट तो बिल्कुल डबल हो चुका है। सब्जियों के रेट की अगर मैं बात करूँ, उसमें आलू, प्याज, पालक, इसके अलावा जितनी भी सब्जियाँ हैं तमाम का रेट आसमानों से बातें करता हुआ नजर आ रहा है। सब्जियों में जो सब्जी मंडी की अगर बात की जाए, वहाँ पर तो एक अजीब सा समा है और उसके अलावा लोग रमजान मुबारक के अयाम की वजह से इन मुनाफाखोरों के हाथों मजबूर होकर खरीदारी कर रहे हैं। फ्रूट की बात की जाए तो खरबूजा, सेब और उसके अलावा खास तौर पर सेब की बात की जाए, वो 300 रुपये मिल रहा था, रमज़ान के आते ही 700 साढ़े 700 तक मिल रहा है। लेकिन हुकूमत इसकी तरफ कोई प्लानिंग नहीं कर रही, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कम से कम रमज़ान मुबारक के महीने में इस पर तवज्जो करें और आम शहरी तक इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए। अब्दुर्रहमान ताहिर स्पेशल टीवी चिन्योट। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के लोग खुश खुराक होने की वजह से रोजाना तगड़ी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। खवातीन और बच्चों की फरमाइश पर कौन कौन से खाने और मजीद क्या क्या एहतमाम किया जाता है, इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे हसीब मदनी से। जी हसीब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में पहलवानों के शहर गुजरांवाला के जो लोग हैं बड़े खुश जायका और लजीजा खाने इफ्तारी के लिए यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं। यहाँ पर खाबों की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस, समोसे, पकोड़े, चकोरियाँ और दीगर जो चीज़ें हैं वो शहरी अफ्तारी के लिए ख़रीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त एक अफ्तार पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अभी हम दुकानदार से बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, इसकी क्या वजह है और क्या इनकी स्पेशल सौगात है। जी, समोसे, रोल हैं, कचौरियाँ हैं, पकोड़े हैं और फास्ट फूड है। इस तरह की आइटम्स हैं जिसकी वजह से लोग हमारे पास रोज़ा इफ्तार करने के लिए आइटम्स लेके जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर हमारी बहुत सी मुख्तलिफ डिशेस जो हैं यहाँ पर मखसूस किस्म की, जिसको शहरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनको ख़रीदने के लिए यहाँ पर बच्चों की फरमाइश पर, घर वालों की फरमाइश पर ख़रीदने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में गुजरांवाला के शहरियों का ये मानना है कि रमज़ानुल मुबारक में इबादत के साथ साथ खुश जायका खुराक जो है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। मिंचनाबाद में मुफ्त आटा न मिलने पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी अफराद का कहना था कि आटे के थैले मनपसंद और सिफारशी अफराद को फराहम किए जा रहे हैं। आटा न मिलने पर मिंचनाबाद इंतजामिया के खिलाफ जलूस भी निकाला गया और नारेबाजी की गई।
शेखुपुरा में पीटीआई के सदर साबिक एमपीए चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लू ने राना तनवीर हुसैन की तरफ से इमरान खान और उनकी अहलिया पर बेहुदा इल्जामात लगाने की शदीद मुजम्मत की है। पीटीआई रहनुमा का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज का ये बयान रिकॉर्ड करने का मकसद जो मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर साहब ने हमारे लीडर के मुतालिक जो कौमी असम्बली में गुफ्तगू की, मैं उसके मुतालिक कहना चाहता हूँ कि राना तनवीर साहब, आप अपने आप को सीजन पॉलिटिशियंस कहलवाते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन कहलवाते हैं, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि आप अपने आप को इतनी दफ़ा असम्बली में ले जाने के बावजूद कुछ ना सीख सके और आप में आज भी वही बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की उस कौमी असम्बली में खड़े होकर, जहाँ पे कवानीन बनते हैं, जहाँ पे कवानीन को जो है वो बना के उसके बाद पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाया जाता है। और आपने वहाँ पे हमारे लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक जो गुफ्तगू फरमाई वो काबिले शर्मिंदगी है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपको तंबीह करते हैं कि आप अपने आप को बदलें और अपने अल्फाज वापस लें और आप माजरत करें कि हम लोग जो है आपने जो गलती की है और आपको जवाब मिल गया होगा। सोशल मीडिया पे आपको पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बात को करने से पहले सोच समझ लिया करें कि जो बात कर रहे हैं वो कहीं आपकी तरफ पलट के तो नहीं आ रही। तो लिहाजा आपको इन चीजों पे गौर करना चाहिए और पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान, हल्का पीपी 135 के कारकुनान पुरजोर मजम्मत करते हैं और चीफ जस्टिस साहब से, चीफ आर्मी स्टाफ से और वजीर आजम से इस चीज की अपील भी करते हैं कि भाई इनको रिजाइन करवाएं। ये इस काबिल नहीं है कि ये कौमी असम्बली में बतौर वजीर तालीम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके। वजीर तालीम जो होता है वो तो तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए वजीर तालीम बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने तो अपनी तालीम जो है वो जाया कर दी, तो लिहाजा आप जो है इस पे कौम से माफी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें। नेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महमूद अख्तर गुराया की जेर सदारत शेखुपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें वाफद अफसरान भी मौजूद थे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।